times now. My question is, yesterday, President Trump and President Xi Jinping of China met, and they issued a statement in which the Americans said that both China and America said that Iran cannot possess a nuclear weapon, and that both China and America agreed that the Strait of Hormuz should be open. What do you have to say to that? Well, we share the same opinion. Iran has never wanted nuclear weapon, and we have proved that when we signed the deal in 2015, and we have said times and again that we don't want nuclear weapon, and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program, and we have always been ready to make confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. On the Strait of Hormuz, this is also our wish that it would be fully reopened. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the mines and obstacles which exist. So we will guide them to pass, as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. The safe passage of all vessels is our policy and in our interest, and we are ready to help those who want to pass safely and securely. This is our policy. At the same time, we have the blockade by the US. We have insecurity in the region because of the US aggression. So obviously the situation is not like the past, but once the aggression is ended, then I'm sure everything would go back to normal. And we make arrangements for the safe passage of all vessels from the Strait of Hormuz, together with Oman. As all of you know, Iran and Oman are two coastal countries in two sides of the Strait of Hormuz. The strait is located in territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. So everything should be managed by Iran and Oman, and this is what we are now consulting with each other to make sure that the arrangements, that there would be a good administration in the Strait of Hormuz in the future, which guarantees the safe passage of all vessels. कोकेन अनमोल पिंकी की निशानदेही पर कराची में फ्लैट पर छापा, बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद, मुकदमा दर्ज। समा भी पिंकी के फ्लैट तक पहुंच गया। मनशियात की रकम वसूल करने वाले फयाज और जीशान गिरफ्त में आ गए। पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब के मनशियात नेटवर्क में हलचल। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से मुबैना ड्रग डीलर्स की फहरिस्त और पिंकी के बयान तलब कर लिए। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई कि चीन ईरान को जंगी साजो सामान फराहम नहीं करेगा। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान के मामले पर चीन और अमेरिका का मौकिफ एक है। सदर शी जिनपिंग ने ईरान तनाज़े खत्म करने पर बात हुई, वो तेहरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर ट्रंप की चीनी हम मनसब के साथ बीजिंग की तारीखी बाग की सैर। अमेरिकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वापस चले गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती काउंसिल की अहलियत पर सवाल उठा दिया। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, सलामती काउंसिल नाअहली की अलामत बन चुकी। सबसे बड़ा सबूत अमरीका और इसराइल की जारियत पर खामोशी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आज़म से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ये अमर हौसला अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को ताउन देगा।
IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। PSDP में वजारत मवासलात का हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मुरम्मत टोल टैक्स की आमदन से ही मुमकिन है। यकीन दिलाता हूँ सड़कों की हालत भी बेहतर होगी, नई सड़कें भी बनेंगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। बताया सक्खर हैदराबाद मोटरवे के 5 सेक्शंस में से 3 की मंजूरी हो चुकी, सितंबर तक काम शुरू हो जाएगा। PB 36 क़िलात से मीर ज़िया लांगू की कामयाबी बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। ECP ने दरख्वास्त गुजार मीर सईद लांगू की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए। अवाम को बजट से पहले रिलीफ मिलना चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है कौमी असम्बली इजलास का कोरम मुकम्मल करे। एक इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आए और हाजिरी लगाकर चले जाएं। होशियार खबरदार, महंगाई की नई लहर आने को तैयार। IMF का फिर डू मोर। पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत की बिजली गैस सार्फिन पर नया बोझ डालने की भी यकीन दहानी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन के लिए रेट बढ़ा दिए जाएंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस में पूरी लागत वसूल की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने का खदशा। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकता है। IMF ने खबरदार कर दिया। नए बजट में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के शोबों में छूट में कमी का फैसला। GDP के 0.15% के बराबर इजाफी आमदन मुतवक्के। आमदन FBR के इस्लाहाती मंसूबे से हासिल की जाएगी। हुकूमती आमदन कम होने पर इजाफी टैक्स इक़दामात उठाएंगे। सरकार की IMF को यकीन दहानी। ईरान जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात। आलमी तरक्की की रफ्तार मुतासर होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग तवील होने से आलमी शरह नमू में मजीद कमी और महंगाई बढ़ने का इम्कान है। तेल की कीमतें ज्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती हैं। IMF की चीफ तर्जमान ने कहा आलमी मईशत बतदरीज मनफी मंजरनामे की तरफ बढ़ रही है। चीनी सदर से ईरान तनाज़ा ख़त्म करने पर बात हुई। वो तेहरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के मामले पर चीन और अमरीका के ख्यालात एक जैसे हैं। अमरीकी सदर का दावा। कहा सदर शी जिनपिंग ईरान पर असरअंदाज हो सकते हैं, नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे तय पाए। हमने बहुत से मसाइल हल कर लिए जो दूसरे लोग हल नहीं कर पाते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले ईरानी जौहरी तंसीबात हमारी निगरानी में है। कोई हलचल हुई तो फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान पर मुकम्मल नाकाबंदी आयद की जाएगी। किसी जहाज को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ईरानी क़यादत में जौहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफात मौजूद हैं। अमरीका से राब्ते में रहने वाली क़यादत माकूल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब के साथ बीजिंग के तारीखी बाग की भी सैर। अमरीकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। चीन का ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया मशरिक़ वस्ता अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। तनाज़े का जल्द हल होना खित्ते के मफाद में है। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए भी आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका को दो टोक पैगाम। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में अब्बास इराक़ची का ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत का मुतालबा।
कहा ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती, आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। ईरानी बहरी अफवाज से ताउन लाजिम है। वाज़े किया UAE को खारजा पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बामी इत्तेफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आए सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। आबना हुर्मस में कशीदगी का असर आलमी तवानाई की कीमतों पर पड़ेगा। कोई भी मुल्क नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हो। अमरीका इस पर अमली इकदाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। वाज़े किया ताइवान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई।